Okay, teachers, I want to tell you that at YOLO we understand the importance of teachers. We understand जो आप कर रहे हैं, आप कितना important काम कर रहे हैं, and that is why we want to join hands with our teachers so that we can make our students future ready. Okay. Now, teachers, I want to ask you, and anybody can answer. Teachers, when you hear the word speak, what is the first thing that comes to your mind? Anybody can answer. Feelings. Absolutely. Feelings, yes. Speak, can I also say speak is to express, whether it's feelings, whether it's emotions, anything. So our program is all about that. Our program is about communication, communicating our thoughts, communicating our feelings. Yes, absolutely. And what we are getting today is professional development one. आज की training, please make sure that आज की training में हम LKG and UKG teachers के लिए करवा रहे हैं, which is professional development junior. Okay, the other one is getting for senior, which is first to eighth. This is for juniors, LKG and UKG. Okay. Moving ahead, teachers, I've already gotten to know you a little. You know a little about me. So thank you so much for that. Teachers, so Lakshana ma'am, I want to know whenever you take a class, so are there any ground rules for the class? जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं तो बच्चों को शांत रहना है, बच्चों को चुप रह के सुनना है, या जब कोरोना था तो उस टाइम पे होता था ना कि बच्चों को अपने कैमरास ऑन रखने हैं. So कुछ ग्राउंड रूल्स हैं आपकी क्लास में? मैम अभी तो मैंने वैसे ज्वाइन किया हुआ है, तो अभी मेरा मतलब इस क्लास के साथ जो है इंटरेक्शन हुआ नहीं है, तो मैम कोई इसके बात बारे नहीं, में कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं. बट नॉर्मली जब हम पढ़ाते हैं तो थोड़े बहुत ग्राउंड रूल्स रखते हैं, राइट, कि बच्चों को शांत रहना है, आप बोल रहे हैं तो बच्चों को सुनना है. सिमिलरली हमारी भी क्लास के थोड़े से ग्राउंड रूल्स है. एक, आपको कैमरा ऑन रखना है जैसा आपने रखा हुआ है, ऑलरेडी आप लोग एंगेज कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट टीचर्स, एज वी मूव फॉरवर्ड यू मे हैव सम क्वेश्चंस, सो फील फ्री टू आस्क देम. ओके, एंड जब आप बात नहीं कर रही हैं, जिस तरह से अभी आपने म्यूट पे रखा ना, ऐसे ही म्यूट रखिएगा, नहीं तो एको का प्रॉब्लम होगा. थैंक यू सो मच टीचर्स. Now, again, teachers, just like I have told you, YOLO is an acclaimed edtech company because we understand that हमारे students, हमारे teachers बहुत important काम कर रहे हैं, इसलिए we want to join hands with our teachers so that we can equip our new students with new age skills. Okay? Okay. Teachers, YOLO में हमारी 4 programs होते हैं. First is Techie. टेकी इज अ कोडिंग कंप्यूटेशन का प्रोग्राम है वो. ठीक है, यहाँ पे हम बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं. नेक्स्ट है हमारा इमेजिन. इमेजिन अगेन हमारा मैथमेटिकल स्किल्स के लिए है. जो मैथ सिखाते हैं ना, तो मैथ्स का करिकुलम है हमारा इमेजिन प्रोग्राम में. देन है हमारा अवेयर. अवेयर हमारा जीके का प्रोग्राम है. And last we have Speak. Speak is our today's hero. Speak is an AI based scholastic program to improve English communication. Okay, so today, teachers, I'll introduce Speak Early program to you. We'll understand the pedagogy and then we'll understand the flow of the chapter. Okay, okay. Now, yeah, this is where I introduce Speak to you. See? Okay. Now, teachers, YOLO में we have 4 things. First, we have books and teacher manual. Then we have Speak application. Then we have teacher professional development, and then we have learning outcome showcase. When I say books, teachers, you've already received your books. So you will have the teacher manual also and the student manual also. Teachers, we understand that you do not need teacher manuals because you're very well capable of making the lesson plan. But we don't want to burden you. That's why we have also given you teacher manual. Teachers, have you received the teacher manual? So Lakshana ma'am, Jyoti ma'am, Palak ma'am, Tanvi ma'am. Palak ma'am, are you there? Yes, ma'am. मैम आपको आपकी बुक्स मिल गई है, टीचर मैनुअल भी मिल गई है? Yes, ma'am. Okay, okay, great, wonderful. नेक्स्ट वी हैव स्पीक एप्लीकेशन. टीचर्स, हमारी 2 एप्लीकेशंस है. एक है स्टूडेंट्स के लिए योलो लर्न, टीचर्स के लिए योलो टीच. आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी. ओके, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. ओके, जैसे आज ये ट्रेनिंग मिल रही है ना, उसकी भी ट्रेनिंग मिलेगी. नेक्स्ट आता है हमारा टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. प्रोफेशनल डेवलपमेंट में टीचर्स जो आज आप सीख रहे हैं ना, इसी को ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कहते हैं. ओके, एंड लास्ट इज लर्निंग आउटकम शोकेस. टीचर्स, ये एक ऑप्शनल प्रोग्राम होता है.
अगर आपको लगता है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, आप देखिए हम आपके बच्चों को बोलना सिखा रहे हैं, तो 6-8 महीने बाद जब आपका बच्चा क्लास में बोलेगा, तो अगर आपके प्रिंसिपल चाहेंगे देन वी कैन हैव दिस प्रोग्राम, जहाँ पे हमारे बच्चे सबके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं, स्किट्स करते हैं और प्लेज में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस द गाइडलाइंस, rubric, everything is provided by us. So again, it's an optional thing. If you want, we will do it. If you don't want, then we'll not do it. Okay, Palak ma'am? Tanvi ma'am, are you there? Yes, ma'am. Okay, great. Great, wonderful. Now, teachers, at this point, I want to ask you, why do you think it is essential to implement an English communication program for young children? बड़े बच्चों के लिए तो समझ आता है, छोटे बच्चों के लिए 3 साल 4 साल के बच्चों के लिए आपको क्या लगता है, क्यों लगता है आपको लगता है इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करना प्रोग्राम? तन्वी मैम, व्हाट डू यू थिंक? मैम छोटे बच्चों से ही शुरुआत करेंगे तभी बड़े होके वो इजीली बोल पाएंगे। Absolutely, ma'am. Thank you so much. Yes, it is very important. अगर बच्चा बचपन से बोलेगा तब उसको समझ आएगा। पलक मैम, आपको लगता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम आसानी से कुछ सीख लेते हैं और बड़े होते तो हम थोड़ा देरी में सीखते हैं? यस मैम, छोटे बच्चे जल्दी कैच करते हैं थिंग्स और बड़ों को थोड़ा होता है। Absolutely, बड़े बच्चों को थोड़ा टाइम लग जाता है सीखने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप। ये देखिए टीचर्स, आपको एक ये दिख रहा होगा। यस, थैंक यू सो मच पलक मैम। आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। On your y-axis, it's written proficiency. On your x-axis, it's written age of acquisition of a second language. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 0 to 7 years में हमारी प्रोफिशिएंसी सबसे हाई है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोफिशिएंसी कम हो रही है। ज्योति मैम, आर यू देयर? ज्योति मैम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I want to ask you, why do you think that as the age grows, बच्चे का लैंग्वेज स्किल कम हो जाता है? Ma'am, at the very lower, younger age, उनका ब्रेन बिल्कुल फ्री है। जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे उनके माइंड में बहुत सी चीजें चलेंगी। So at this stage, they are free to learn everything and they have capacity to learn faster than our. Absolutely, ma'am. Thank you so much. It's a scientific fact. जब बच्चा छोटा होता है, that is when that is the best age. 0 to 7 years is the best age to learn any language. Now, teachers, see, 1 to 7 is the best age to learn a second language. Now, teachers, I want to ask you, now that we have established कि 1 to 7 में हम कर सकते हैं, देखिए 1 to 3 में तो हम नहीं आ सकते हैं बिकॉज सब तो बच्चा स्कूल क्लास अपने घर पे है, लेकिन as soon as possible जब बच्चा क्लास में एनरोल होता है, so 3 to 7 में हम बच्चे की फ्लुएंसी पे फोकस करते हैं। Now, teacher, how do you think fluency can be developed at this age? How do you think, teachers? So, Lakshana ma'am, what do you think? So, Lakshana ma'am, are you there? Yes, ma'am, but I haven't listened you, ma'am, what you said. Oh, okay. Ma'am, मैं ये कह रही थी कि how can the fluency in English be developed in age 3 to 7? कैसे development करते हैं? Yes, ma'am. Ma'am, if we will try to speak with the children in English, then only they will try to imitate us and talk in English. Absolutely, ma'am. You very correctly said. We have to first talk in English, and then the children can talk in English. Absolutely, ma'am. Wonderful. What are the other things, Jyoti ma'am? What can we do? What are the other things we can do, Jyoti ma'am? Pardon, ma'am. Could you please repeat? Yes, ma'am. Ma'am, so Lakshana ma'am said that for our children to speak in English, first we have to talk in English. So that is first step. What are the other things we can do so that our children speak in English? Anybody else can answer? Tanvi ma'am, Palak ma'am.
I'm very sorry, ma'am. Could you please repeat? Yes, ma'am. Of course. No problem. Ma'am, I said that we have already established that from should I continue, teachers? Okay. I was saying that we have established that at the age of 3 to 7, child develops the language very fast. Now, how can we develop it? So Lakshana ma'am said that we can developing it by speaking ourselves in English. So that is one way. What other ways are there? We can show them signs or writes, or we can Very speak good, in ma'am. use small words with them. Wonderful, ma'am. Thank you so much. Yes, teaching them small functional English. Yes, we can use props. Absolutely, ma'am. Thank you so much. Absolutely. Teachers, just like you told me that we can use functional English, we can use props. Now, teachers, I will ask you some true and false questions. You tell me what do you think is the right answer. Okay. Teachers, now do you think students should learn functional English? फंक्शनल मीनिंग डे टू डे इंग्लिश. टीचर्स, आपको लगता है जरूरी है? सुलक्षणा मैम, तन्वी मैम, आपको लगता है कि बच्चों को डे टू डे इंग्लिश सिखाना जरूरी होता है? यस मैम, एब्सोल्युटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि डे टू डे वो थोड़ा लर्निंग करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा. Absolutely, ma'am. Absolutely. Thank you so much. Very important. And then uske baad, Sulakshana ma'am, do you think children should be allowed to make mistakes while learning? Yes, ma'am. Absolutely. बहुत जरूरी है. गलती करेगा बच्चा तभी सीखेगा. बिल्कुल मैम. तभी सीखेगा. Yes, ma'am. बिल्कुल मैम. और एक बार बच्चे ने मान लीजिए जवाब दिया, चाहे गलत दिया सही दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आपको लगता है कि बच्चे को एनकरेज करना जरूरी है. वेरी Yes, गुड. ma'am. Then only he will try to learn another new word and correctly. एब्सोल्युटली मैम. बिल्कुल, इससे बच्चे को बहुत मोटिवेशन मिलती है. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच मैम. Teachers, and once a child has, let's say, spoken something, do you think teachers should accurately model the pronunciation of English words? क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता प्रोनाउंसिएशन, बच्चे तो अभी छोटे हैं. सो तन्वी मैम, आपको लगता है कि मॉडल करना जरूरी है? आप पहले बोल के दिखाएंगे और फिर बच्चा बोल के दिखाएगा प्रोनाउंसिएशन? यस मैम, इससे बच्चे को भी बोलने में अच्छा लगता है और वो भी कुछ सीखा है न्यू वर्ड. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसको अगर हमें प्रोनाउंसिएशन सिखानी है तो टीचर हैज टू मॉडल इट. एब्सोल्युटली मैम, ट्रू. And last, teachers, do you think for children, do you think the process of learning English should be fun and engaging? Do you think, Palak ma'am? Do you think the process should be fun and engaging? या boring होना चाहिए? No ma'am, fun and teaching. बिल्कुल बिल्कुल. Fun and engaging. Absolutely. Thank you, ma'am. Wonderful. Teachers, at this point, I want to tell you that हमारा जो स्पीक प्रोग्राम है उसके अंदर हम प्रैक्टिकल यूसेज ही करते हैं. जैसे अभी आपने बोला ना दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को फंक्शनल इंग्लिश आनी चाहिए, बच्चों को रेपिटेशन होना चाहिए, बच्चों को क्या कहते हैं अवार्ड रिवॉर्ड देना चाहिए जब बच्चा सही बोलता है. हम स्पीक में एग्जैक्टली यही करते हैं. तो हम बच्चों को प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाते हैं अबाउट सेल्फ, अबाउट फ्रेंड्स. सबसे पहले हम अपने बारे में सिखाते हैं बच्चे को, सेल्फ टू सोसाइटी. पहले बच्चा अपने बारे में बात करना सीखता है, फिर अपनी फैमिली के बारे में, फिर अपने नेबर्स के बारे में, फिर अपने स्कूल के बारे में. तो इस तरह से हम बच्चे की अवेयरनेस बढ़ाते हैं. आप देखिए जूनियर 1 में देखिए पहले अबाउट मी है, फिर माय स्कूल है, फिर माय नेबरहुड है. तो धीरे धीरे बच्चे की हम अवेयरनेस खोल रहे हैं. पहले वो अपने बारे में बात करेगा, फिर वो स्कूल के बारे में करेगा, फिर नेबरहुड के बारे में बात करेगा. तो इस तरह से वो खोलेगा. अभी देखिए जूनियर 2, इसमें भी देखिए पहले वो अपने नेचर के बारे में बात करेगा, फिर वो अपने रूटीन के बारे में बात करेगा, फिर नेचर के बारे में बात करेगा, फिर पीपल अराउंड अस. तो इस तरह से सेल्फ टू सोसाइटी, दैट इज द प्रिंसिपल दैट वी फॉलो इन द स्पीक पेडागोजी. Okay, teachers? Teachers, if you want, you can also do this. You can show me a thumbs up like this. Either you can show it like this or you can do this. Okay, teachers? Right? Okay, great. Okay. Now, moving forward. Okay.
Teachers, I want you to pay attention to what is happening in the video and then we'll talk about it. Okay? बैठे तो ठीक है. हाँ. Hello everyone, my name is Ronak. I live with my parents. My favorite food is puri and paneer ki sabji. Very Thank good. you. Very good. Clap for her. जोर से. Okay. Teachers, what was happening in the video? And the child was introducing herself to the class, and the teacher was appreciating her actions. Absolutely, ma'am. Thank you so much. Yes, the child was speaking and the teacher was appreciating. Teachers, I want to ask you at this point, क्या टीचर ने बच्चे को बीच में रोक के उसकी गलती बताई या टीचर ने बीच में रोका था बच्चे को? ऐसा हुआ था क्या? No, ma'am. बीच में बच्चे ने को नहीं रोका, बच्चे ने जैसा बोला, सही बोला, गलत बोला, टीचर ने सिर्फ उसको अप्रिशिएट किया. बिल्कुल. सो टीचर्स इन स्पीक जूनियर, इट इज ओके फॉर द स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स. अभी बच्चे ने हिंदी में बोला, I like paneer and sabzi, पनीर की सब्जी and पूरी. Now even if it is in Hindi, टीचर ने बिल्कुल नहीं रोका कि नहीं बच्चा आप हिंदी में क्यों बोल रहे हो, आप इंग्लिश में, कुछ नहीं. What we are doing is it is okay for the students to make mistakes in the speak program. The speak program has a unique approach. Teachers, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर बच्चे ने मान लो गलती करी है, गलत बोला है, तो टीचर अच्छा एक काम करते हैं, एक डेमो करते हैं. ठीक है, मैं ना जानबूझ के गलत जवाब दूंगी, आप मुझे करेक्ट करना. ठीक है, किसके साथ करूं मैं? वंदन सॉरी ज्योति मैम, आपके साथ करूं मैं? Yes. ज्योति मैम, सुरक्षा. ओके ज्योति मैम, मैं ना गलत जवाब दूंगी. ठीक है, आप मुझसे पूछो व्हाट इज योर नेम, मैं गलत जवाब दूंगी. ठीक है, फिर देखते हैं आप मुझे करेक्ट कैसे करते हो. ओके, आप मुझसे पूछो व्हाट इज योर नेम. What is your name? Ma'am, my name Kanika is. Okay, very good. But आप इसको ऐसे बोलेंगे, My name is Kanika. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम. ज्योति मैम, आप काफी हद तक बिल्कुल सही तरीके से मॉडल कर रहे हैं. मैम हम भी ऐसे ही करते हैं. आप अब एक काम करिए, मैं टीचर बनती हूँ, आप स्टूडेंट बनिए. ठीक है, आप गलत जवाब देना, मैं आपको बताती हूँ कि हम स्पीक में कैसे करेक्ट करते हैं बच्चे को. ओके व्हाट इज योर नेम? Ma'am, my name Jyoti. Okay, very good. Children, clap for Jyoti. Jyoti has made a full sentence. Children, Jyoti wants to say, my name is Jyoti. Jyoti, repeat after me. My name. My name is Jyoti. Very good. Children, clap for Jyoti ma'am. Teachers, आपको समझ आया मैंने क्या किया अभी? मैंने बच्चे को बिल्कुल ये बात नहीं बोली कि बच्चे आपने गलती की है या अब मैं आपको करेक्ट करूंगी. नथिंग लाइक इट, बिकॉज व्हेन वी से सर्टेन थिंग्स, बच्चे के मन में बात बैठ जाती है कि मैं गलत बोलता हूँ या बोलती हूँ. सो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट वी विल ऑलवेज अप्रिशिएट द चाइल्ड नो मैटर व्हाट. हमें बोलना है वेरी गुड, गुड जॉब चिल्ड्रन, क्लैप फॉर ज्योति. एंड देन आई विल से, ज्योति यू हैव मेड अ फुल सेंटेंस, वेरी गुड ज्योति. चिल्ड्रन, ज्योति wants to say my name is ज्योति, और फिर बच्चे से सेम चीज रिपीट कराई क्योंकि बच्चे ने गलत बोला था. ठीक है टीचर्स? सो इधर टीचर अप्रिशिएट्स देम फॉर ट्राइंग एंड देन मॉडल्स द राइट वे टू से इट, जिस तरह से मैंने आपको मॉडल करके अभी दिखाया. ओके, अभी हम आगे करेंगे व्हाट आई मीन बाय इट. बैठे तो ठीक है. टीचर्स अब आप ये देखिए, अब टीचर करके दिखाएगी आपको. My name is Sneha. I live with my brother, mother and father. My favorite food is puri sabzi. Thank you. टीचर्स आपने देखा
Jyoti ma'am, are you there? Is everything okay? Yes, ma'am. Okay, okay. So teachers, आपने देखा कि टीचर ने अब कैसे किया? टीचर ने पहले बीच में बिल्कुल नहीं टोका, फिर टीचर ने सही जवाब करके दिखाया कि करना कैसे था और बच्चों ने रिपीट किया टीचर के पीछे. ठीक है टीचर्स? तन्वी मैम, पलक मैम, आर यू देयर? Yes, ma'am. Okay, great. My name is Sneha. Sorry. Okay, teachers, I want to ask you now that बच्चों को do you feel कि rhymes, stories, animated videos पसंद होती हैं? पलक मैम, आपको लगता है बच्चों को पसंद होते हैं सब? यस मैम. बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं ना जब उनको कोई एनिमेशन दिखाया जाए, कार्टून दिखाया जाए, राइट? यस मैम, वो उनसे और सीखते हैं राइम्स और स्टोरीज से. बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत सीखते हैं. इसीलिए हमारे स्पीक प्रिंसिपल्स के अंदर भी हम राइम्स करते हैं, स्टोरीज देते हैं और एनिमेटेड वीडियोस देते हैं. ओके, एंड ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें एक थीम के अंदर वोवन होती हैं. तो उस थीम के अराउंड सारी चीजें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए थीम है अबाउट मी, तो स्टोरीज भी अबाउट मी पे होंगी, राइम्स भी अबाउट मी पे होंगी, एनिमेटेड वीडियोस भी मेरे ऊपर होंगी, अबाउट मी पे होंगी. तो इससे क्या होगा, बच्चे को ना ओवरऑल सारी चीजों से समझ आएगा अबाउट मी में कैसे बोलना है. और मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट आई मीन बाय इट. अब देखिए, अब हम पेडागोजी समझेंगे, तब पढ़ाने का तरीका समझेंगे. ओके टीचर्स, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, लेट मी आस्क यू, आप कैसे पढ़ाते हो अपनी क्लास को. ओके, हाउ डू यू बिगिन टीचिंग अ न्यू क्लास? क्या आप आते ही क्लास को पढ़ाना शुरू कर देते हो, या फिर यू इनिशिएट द क्लास विद एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी? पलक मैम, क्या करते हो आप? मैम, पहले उनको मतलब इंट्रोडक्शन करने, फिर बाद में एंटरटेन करके थोड़ा, फिर कुछ टाइम बाद उनको स्टडी करवाते हैं. एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर. यस, आप पहले इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आप इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हो. यस, यू इनिशिएट द क्लास विद एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. अच्छा, एक बार वार्म अप एक्टिविटी हो गई तो तन्वी मैम, आप कॉन्सेप्ट कैसे बताते हैं बच्चों को? आप बोलते हो बच्चों एक काम करो, खुद पढ़ के समझ लो, या फिर आप समझाते हो? नो मैम, चार्ट बनाया होगा, ये कोई एक्टिविटी के थ्रू उनको बताते हैं इजी तरीके से. बिल्कुल, ये बिल्कुल राइम के मैम. जरिए उन्हें पढ़ाते हैं. बिल्कुल मैम, यस, आप पढ़ाते हो बच्चों को. बच्चों को ये नहीं बोलते कि खुद समझ लो. बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू देम. अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंश्योर, एक बार बच्चे को आपने पढ़ा दिया तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों को समझ आया है? आपको लगता है कि बच्चों के साथ रेपिटेशन करना जरूरी है, या फिर आप डायरेक्टली होमवर्क दे देंगे? ज्योति मैम, क्या करते हैं आप, डायरेक्टली होमवर्क दे देते हैं? No, ma'am. It should be repeated again and again in the class. Absolutely, ma'am. Absolutely. It's very important to repeat. Thank you so much, ma'am. And next, सुलक्षणा मैम, एक बार टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, आपको लगता है कि बच्चे को प्रैक्टिस करना भी जरूरी है क्लास के अंदर? Yes, ma'am, it is necessary, ma'am. Absolutely. Very, very important. Very true. And एक बार you have explained the concept, you've repeated, the hands-on practice is done. How do you conclude the class? Do you summarize and allot the homework? या घंटी बज गई तो आप बोलते चलो अब now I'm going? How do you do it? Ma'am, we summarize all the content which we have taught to the students, then only we provide them homework. Absolutely, ma'am. Thank you so much. Yes, you summarize and allot the homework. Teachers, I want to tell you, this is something that you have already been doing. सबसे पहले आप कोई एक वार्म अप एक्टिविटी करते हो, फिर उसके बाद आप पढ़ाते हो, फिर बच्चों से रिपीट करवाते हो, फिर बच्चों से पूछते हो क्वेश्चंस और कंक्लूड करते हो. टीचर, एग्जैक्टली वही आप करते आ रहे हो, अभी भी आपको यही करना है. So we do the same thing. सबसे पहले we do a warm up activity जहाँ पे students get engaged through activities. Next we have listen. Listen में students listen to what the teacher says and enjoys. तो यहाँ पे बच्चा सुनता है और टीचर बोलती है. Teachers don't get confused कि listen का मतलब है कि टीचर सुनेगी और बच्चा बोलेगा. नहीं, ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे और बच्चा सुनेगा. ठीक है ज्योति मैम? Okay. Next we have echo. Now at this point, teachers, I want to ask you, what is the meaning of echo? कोई भी बता सकता है मुझे echo का क्या मतलब होता है? जो हमने बोला वो बच्चे वापस बोले.
Yes, ma'am. Thank you so much. Repetition. Yes. So echo is repetition. Teachers, okay. This point I also want to ask you. जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, and आप अग्री करेंगे मेरे साथ, क्या हमें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है? तन्वी मैम, थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है बच्चों के साथ? यस मैम। थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है, थोड़ा उनसे धीरे धीरे बात करनी पड़ती है, यस मैम। राइट? अगर लेट्स से मुझे बोलना है हाय, तो मैं नॉर्मल बोल दूंगी हाय, या मैं ऐसे बोलूंगी हेलो चिल्ड्रन, हाय? कैसे बोलूंगी मैं बच्चों को? एक्टिंग करके हाय, ऐसे Yes, थोड़ी ma'am. ज्यादा स्माइल करके। यस मैम, हमें एक्टिंग करनी पड़ती है। टीचर्स, इस एक्टिंग को ना TPR कहते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब है टीचर जैसा करती है ना, बच्चा वैसा ही करता है। ये एक साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि बच्चों को जब भी हम कोई बात सिखाते हैं, जैसे तन्वी मैम आप खुद भी बोल रहे थे कि बच्चों को हम थोड़ा प्रॉप्स से यूज करते हैं। सो हम प्रॉप्स क्यों दिखाते हैं? ताकि बच्चों को प्रॉप्स से समझ आए हम क्या बोल रहे हैं, राइट? इसीलिए ही एको के अंदर एग्जैक्टली वही चीज होती है। स्टूडेंट सेज व्हाट द टीचर सेज एंड एक्ट्स एज अ टीचर एक्ट्स। तो यहाँ पे हमारी एक्टिंग होती है, टीचर थोड़ी सी एक्टिंग करती है और स्टूडेंट्स उसी चीज को रिपीट करते हैं। टीचर्स, बहुत मजा आएगा, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी ना, आप खुद समझेंगे कि आपको क्लास यहाँ इतना मजा आ रहा है, तो बच्चों के साथ तो बहुत ही मजा आएगा। नेक्स्ट वी हैव ENR. ENR इज एक्सप्रेस एंड रिपीट। यहाँ पे बच्चा अपने सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली बताता है। यहाँ पे जो बच्चे ने सीखा है ना, ENR में बच्चा इंडिपेंडेंटली बताता है। क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, इट इज एब्सोल्युटली ओके इफ द स्टूडेंट्स जस्ट रिपीट व्हाट ही लर्नड इन द एको सेक्शन, ओके? And last we have conclusion. In the conclusion we summarize and assign homework. Now I will break down every part and explain each separately to you. Okay, let's understand the flow of a chapter. Just like I told you, we have themes. हम chapter नहीं बोलते, we call it themes. So in junior training we have 4 themes. In a theme we have 4 periods. See, period 1, period 2, period 3, period 4. 4 पीरियड्स होते हैं थीम के अंदर। एक पीरियड आप एक हफ्ते के अंदर करेंगे, दूसरा पीरियड आप सेकेंड हफ्ता करेंगे, ये आप तीसरा हफ्ता, और ये चौथा हफ्ता। चौथा हफ्ता मतलब हफ्ते में बस एक ही क्लास होगी आपकी इसकी, ठीक है? तो हफ्ते में एक क्लास ये हो गई, फिर दूसरे में ये हो गई, तो यानी कि एक महीने के अंदर अंदर आपका एक थीम कवर हो जाएगा, ओके? और जो अभी हमने पेडागोजी समझी है ना, वार्म अप, लिसन, एको, ENR, कंक्लूजन, ये 5 चीजें, ये 5 चीजें सारे पीरियड्स में फॉलो होती है। अच्छा, ज्योति मैम आप मुझे बताएंगे 5 चीजें? वार्म अप, लिसन, यस, वार्म अप, बताइए मैम। लिसन, इको, ENR, कंक्लूजन। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच, ग्रेट। तन्वी मैम आप बताएंगे अब? वार्म अप, लिसन, ER, इको, इको, वार्म अप, लिसन, एको, ENR, कंक्लूजन। वंडरफुल। पलक मैम एक बार आप करके दिखाएंगे? यस मैम। वार्म अप, लिसन, इको, ENR, कंक्लूजन। वंडरफुल मैम, थैंक यू। सुलक्षणा मैम? Ma'am, first of all, warm up, then listen, then echo, then ENR, and lastly it is conclusion. वंडरफुल। और ENR की फुल फॉर्म क्या है टीचर्स? Express and repeat. Express and Wonderful. Thank you so much, teachers. Okay, moving forward. Now, in period 1, first we have warm-up activity. Just a second. We have warm-up activity. Warm-up activity means we discuss the picture. Then we have listen, wherein the teacher explains the story and the students listen to the story. Next, we have echo. In echo, we have speak and act. ENR, we tell the sentence, and in the conclusion, we give the homework. Let me explain everything one by one. Okay, teachers, this is how a student would look like, and this is how the teacher manual would look like. I'm sure you must have gone through the teacher manual once, right, teachers? Yes, sir. Okay. Yes, ma'am. Okay, great. Okay, so teachers, you will start it like this. Good morning, students. Teachers, मैं ना teacher बनती हूँ, आप student बनेगा, ठीक है? तन्वी मैम, आप student बनना, मैं teacher बनती हूँ, ठीक है? Good morning, children. Good morning, ma'am. How are you all? I am fine. Very good, Tanvi. Tanvi, you ate food? Yes, ma'am. Very good. Now, children, look at the picture on page number 1.
carefully. Okay, now children, I will ask you some questions. Okay, now Jyoti, what do you see in the picture? Ma'am, there is a boy, cat, Very good, mango, very cake, good, very butterfly. good, very good. Children, clap for Jyoti ma'am. Very good, Jyoti. Yes, I see a boy, mango, cat, cake, grandmother. Very good. Palak beta, do you see a pet cat? Yes, ma'am. Palak ma'am, do you see a pet cat? Yes, Very I good. have a pet. Very good, Palak. Good. Yes, I have a pet cat. And Palak, do you like to eat mango? Yes, I like to eat mangoes. Very good, children. Clap for Palak. Very good. टीचर आपको समझ आया मैंने कैसे किया ये? बच्चा जवाब देगा और आप अप्रिशिएट करेंगे. टीचर्स बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा फुल सेंटेंस नहीं बोल पाता. जैसे मान लीजिए ज्योति मैम आप टीचर बनिए, मैं स्टूडेंट बनती हूँ, ठीक है? मान लीजिए बच्चे ने बोला, जब मैम ने पूछा व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, बच्चे ने बोला मैम पिंक केक, मैम ग्रैंडमदर, मैम बॉय. तो कई बार बच्चा फुल सेंटेंस नहीं बोलेगा. तो मान लीजिए अगर बच्चे ने सिर्फ बोला पिंक केक या बोला मैंगो या कैट, तो आप बच्चे को सबसे पहले अप्रिशिएट करेंगे और बोलेंगे वेरी गुड, यस आई कैन सी अ केक, आई कैन सी मैंगो, यस वेरी गुड. फिर जब आप फुल सेंटेंस बोलेंगे ना तो बच्चा सुन रहा है उस चीज को, आप रिपीट नहीं करवाएंगे बच्चे से. यहाँ पे बच्चा सिर्फ सुन रहा है आपकी बातें. ठीक है टीचर्स? ओके ज्योति मैम एक बार आप मुझे करके दिखाइए ये. बेटा आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? क्या आप मुझे बताएंगे? यस मैम. मैम बॉय. अच्छा टीचर्स थैंक यू सो मच फॉर सेइंग इट इन हिंदी. यहाँ पे मुझे बोलना था, मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड कंप्लीट इंग्लिश, so it is okay to speak in Hindi, but it is very very important to come back to English language, because the idea is that the child speaks in English language. So let's say अगर आपने बोला अच्छा बच्चे आपको क्या दिख रहा है, आपने बोला और फिर उसके बाद आपको बोलना है now कनेका what do you see in the picture, इससे बच्चा एसोसिएट करेगा इंग्लिश को. ओके ज्योति मैम? ओके सो एक बार आप मुझे यहाँ से करके दिखाइए. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लुक एट द कवर पिक्चर. यहाँ से Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम. How are you all? मैम गुड. मैम हाउ आर यू? I'm also good, thank you. Okay, students. Look at the board. Board पे देखो. आपको कुछ pictures दिख रही हैं? So Yes, please ma'am. tell me what do you see on the board? आप मुझे बताएंगे Ma'am. क्या क्या दिख रहा है बोर्ड Yes, पे? यस मैम. मैम मैंगो, मैम केक, मैम कैट आल्सो. Very good. और मैम फ्लावर्स, मैम ग्रास, Good. मैम ग्रैंडमदर आल्सो. Very good. Class, clap for Kanika. Very सॉरी good. मैम. You can say, I see boy, a cat, I saw a mango, I can see a pancake, cat. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक बार आप ये पूछिए, डू यू हैव अ पेट कैट? Do you have a pet cat? नो मैम. मैम आई हैव पेट डॉग. Okay, very good. Yes. डू यू लाइक टू ईट मैंगो? Do you like to eat mango? यस मैम. मैम फेवरेट फ्रूट? Okay, I also like to eat mango. I also like mango. और बताइए और किस किस को मैंगो पसंद है? पलक मैम यू कैन से आई आल्सो लाइक. I also like. थैंक यू पलक मैम. Very good, थैंक यू ज्योति मैम. Palak. वेरी नाइस. Anybody else?
मैम वेरी नाइसली डन, वेरी नाइस डेमोन्स्ट्रेशन, थैंक यू ज्योति मैम। टीचर्स आपको समझ आ रहे कैसे करना है? पलक मैम आसान Yes, है, ma'am. मैम ने सिर्फ पढ़ दिया जो लिखा हुआ था, राइट? यस ज्योति मैम आसान था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव लिसन। नाउ टीचर्स अब आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे अब आता है ये वाला स्टोरी टाइम। सबसे पहले स्टोरी खुलेगी तो आप बोलेंगे, ये देखिए आप बोलेंगे वेरी नाइस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अ स्टोरी कॉल्ड फर्स्ट डे एट स्कूल। इट इज अबाउट अ बॉय नेम्ड नील who is learning to talk about himself. Now let us begin reading. ठीक है टीचर्स, जो लिखा है ना आपने बस ये वही चीज बोल देनी है। टीचर्स आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं, आप डू यू वांट टेक अ ब्रेक, डू यू वांट टेक 5 मिनट्स? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। No, ma'am, it's okay. ओके ओके ओके, मैम शुड आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड? Yes. ओके ओके, सो यहाँ पे आपने वार्म अप कर लिया ना, अब आप बोलेंगे वेरी नाइस, नाउ वी रीड अ स्टोरी कॉल्ड फर्स्ट डे एट स्कूल। इट इज अबाउट अ बॉय नेम नील who is learning to talk about himself. Now let us begin reading. Teachers, you would have noticed कि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। पलक मैम, डू यू अग्री कि बच्चों के साथ धीरे धीरे बोलना पड़ता है? Yes, ma'am. हाँ, तो बड़ा जरूरी होता है कि हम धीरे धीरे बात करें, तो आप भी थोड़ा धीरे धीरे ही बात कीजिएगा। आपने जब बोला ना लेट अस बिगिन रीडिंग, टीचर्स आपके पास यहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप यहाँ पे ना एक क्यूआर कोड क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे ना तो अपने आप एक वीडियो चल जाएगी, तो वो एआई अपने आप बोलना शुरू कर देगा। या तो आप वो कर सकते हैं या फिर आप खुद पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। ओके टीचर्स, ओके ओके, अब आप जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, अब आप ऐसे बोलेंगे, ओके नाउ चिल्ड्रन आई विल स्टार्ट रीडिंग। ओके चिल्ड्रन, पे अटेंशन। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। चिल्ड्रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल? ज्योति बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल? स्कूल का क्या मतलब होता है ज्योति? मैम स्कूल में खेलने आते हैं, to study and Very to good, learn Jyoti. right. Very good, children. Clap for Jyoti. Yes, school is a place where we go to study. Teachers, आपको अपने टीचर मैनुअल में दिख रहा है, ये टेबल दिख रहा है? मैं ऐसे पॉइंट कर रही हूँ, दिख रहा है आपको? है ना, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे ना कीवर्ड दे रखा है, प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, मीनिंग दे रखा है और एक्शन दे रखा है। टीचर्स आपने नोटिस किया मैंने स्कूल में ऐसे एक्शन किया, ऐसे आपने देखा मैंने ऐसे किया? पलक मैम, तन्वी मैम, मैंने ऐसे एक्शन किया था। Yes, ma'am. ना जब मैंने ऐसे एक्शन किया था ना, तो जब भी ये चीजें जो भी हाईलाइटेड है ना, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स पे आपको रुकना है, बच्चों से मीनिंग पूछना है और एक्शन करना बड़ा जरूरी है। टीचर्स, आपको लगता है कि एक्शन करने से बच्चा ज्यादा जल्दी सीखता है? जैसा हमने पूछा था टीपीआर में, है ना? तो इसमें ना हम एक्शन करेंगे जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है। तो हम ऐसे बोलेंगे, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। पलक बेटा, स्कूल का मतलब क्या होता है? जहाँ हम कुछ सीखेंगे। Very good, yes. School is a place where we go to study. Very good, Palak. Very good. Now I will continue reading. The teacher says, today you will learn to say your name, age, class, and school. Isn't that good? Yay! Cheer the children. The teacher asks, what is your name? Teachers, I'm sure सारे बच्चों के पास आई कार्ड होता है, स्पेशली छोटे बच्चों के पास तो आई कार्ड होता ही है। तो आप किसी बच्चे का आई कार्ड उठाएंगे और उसके नेम को फोकस करेंगे ऐसे।
व्हाट इज योर नेम, क्योंकि देखिए नेम हाईलाइटेड है, तो नेम पे ना हमें एक्शन करना है। अच्छा तन्वी, नेम का क्या मतलब होता है? यस मैम। नेम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाम, नेम? मेरा नाम क्या है? नेम मीनिंग व्हाट पीपल कॉल यू। वेरी गुड। जब भी कोई ऐसा वर्ड हो ना, आपको मीनिंग बताना है बच्चों को। यहाँ पे टीचर मैडम ने आपको मीनिंग दे रखा होगा और आपको एक्शन भी करना है। व्हाट इज योर नेम? नील learns to say my name is नील। टीचर्स आपको यहाँ पे 1 दिख रहा होगा। तन्वी मैम, आपको यहाँ 1 दिख रहा है? यस मैम। इसका मतलब है कि जैसे आपने पूछा ना माय नेम इज नील, उसके बाद आपको आपके टीचर मैनुअल में एक सवाल आएगा, तब आप पूछेंगे ओके ज्योति बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय? वेरी गुड, यस, द नेम ऑफ द बॉय इज नील। थैंक यू सो मच मैम, आपने सिर्फ एक ही जवाब दिया, क्योंकि मोस्टली बच्चा ना सिर्फ एक ही वर्ड बोलेगा नील, बच्चा पूरा नहीं बोल पाएगा द बॉयज नेम इज नील। सो बहुत सही बोला आपने, तो आप बोलेंगे यस, वेरी गुड ज्योति, द नेम ऑफ द बॉय इज नील। वेरी गुड। नाउ आई विल कंटिन्यू रीडिंग। Oh, wonderful! The teacher says, now tell me what is your age? Tina smiles and says, I am 4 years old. Children, how old is Tina? Sulakshana ma'am. 4 years old. Good, very good. And thank you so much Sulakshana ma'am. Thank you so much Jyoti ma'am. आपने बहुत प्यारे तरीके से बच्चे की तरह एक्टिंग की। Yes, बच्चा भी ऐसे करेगा। 4 years old. Very good. बहुत अच्छा किया आपने। जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आ रहे हैं ना, वहाँ वहाँ आपको रुक के उनका मतलब समझाना है, उनकी एक्शन करना है, और जहाँ पे भी आपको 1 2 दे रखा है ना, जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको रुक के सवाल पूछना है। ये 1 2 3 4 आपकी बुक में होगा, बच्चों की बुक में नहीं होगा। ठीक है, बच्चे नहीं देख सकते 1 2 3 4। ओके टीचर्स? ओके पलक मैम? मैम। ओके, ये देखिए, उसके बाद आप बोलेंगे, मान लीजिए आपने टेक्स्ट खत्म कर दिया, फिर आप बोलेंगे ओके, इन द स्टोरी वी रेड अबाउट अ बॉय नेम नील, ही लर्न्स टू टॉक अबाउट हिज नेम, एज, स्कूल एंड क्लास। ये हमारा लिसन खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एको। अच्छा टीचर्स, ये भी मुझे बताना है, आप अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे कि हम लिसन कर रहे हैं अब हम एको करेंगे, ये मत बोलना बच्चों को, ठीक है? ये आपके लिए है। ओके ओके। नेक्स्ट आता है एको। ना टीचर्स, आपको याद होगा एको में हमने टीपीआर के बारे में बात की थी कि बच्चा जो आप करते हो बच्चे उसकी एक्टिंग करते हैं, राइट पलक मैम, तन्वी मैम, है ना? यस मैम। यस मैम। बोलेंगे ओके स्टूडेंट्स, नाउ से व्हाट आई से एंड डू व्हाट आई डू। चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर मी। टीचर्स, मैं स्टूडेंट बनती हूँ, मैं टीचर बनती हूँ, आप स्टूडेंट बनिएगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट, नाउ have to repeat after me, okay? Say what I say and do what I do. Children, repeat after me. Say what I say and do what I do. Very good. Children, I go to school. Repeat after me. I go to school. Very good. टीचर, आपको लगता है कि बच्चों को बस एक बार कर देंगे तो याद हो जाएगा, या बार बार करना पड़ता है बच्चों के साथ? रिपीट करना बिल्कुल, पड़ेगा। बहुत बार रिपीट करना पड़ता है ना, तो आपको सेम चीज 5-6 बार रिपीट करनी है, ठीक है? I go to school. सिमिलरली हम ऐसे भी कर सकते हैं, I go to school in the morning. बच्चों को, और आप उसी चीज को 5-6 बार बुलवाएंगे बच्चों से, ताकि बच्चों को याद हो जाए वो सेंटेंस। सेम जैसे अब स्कूल खत्म हो गया, अब आते हैं वो नेम, तो आप सेम वही चीज करेंगे। चिल्ड्रन, व्हाट इज दिस? Say what I say, do what I do. Children, repeat after me. Say what I say, do what I do. My name is Riya. Repeat after me. चीज आपने अपने फोन से लिखा था। मैम, ये बहुत जरूरी है कि आप ये करके दिखाएं, इससे आईडी कार्ड से करें। अभी आईडी कार्ड नहीं है तो अपना फोन ले सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, माई
Name is Priya. एक बार आप ऐसे करके दिखा दीजिए. My name is Priya. Very good teachers. Thank you. Thank you so much teachers. Thank you so much for being adorable children. आप बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हो मुझे. मुझे अभी इतना मजा आ रहा है. आपको वहां पे क्लास में तो बहुत मजा आएगा. तो ये सेम चीज आपको टीचर्स सारे वर्ड्स के साथ करनी है. ठीक है, ये सब कुछ लिखा होगा आपकी बुक में. ओके, नेक्स्ट वी कम टू ENR. अब ENR में आपको याद होगा कि बच्चा अपने आप सेंटेंस बनाता है. तो इस पॉइंट पे या तो बच्चा इंडिपेंडेंटली सेंटेंस बना लेगा, या फिर बच्चे ने जो अभी लर्न किया ना एको में, वो भी बोल देगा, तो भी कोई बात नहीं. ओके, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पलक मैम. बेटा पलक बताओ, टेल मी द सेंटेंस विद द वर्ड स्कूल. School is the place where we learn. Very good children, clap for Palak ma'am. Palak ma'am, you have made the right sentence. Teachers, कई बार होता है कि बच्चे अपने आप सेंटेंस बना लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको अप्रिशिएट करना है उनको बहुत. आपको उनको बोलना है बहुत अच्छा, वेरी नाइस, पूरा सेंटेंस था, सही था, क्योंकि आपने सही सेंटेंस बनाया. मोस्टली बच्चे ना वही सेंटेंस बनाएंगे जो पुराना उसने सीखा है. तो बोलेंगे आई गो टू स्कूल, वही बोल देगा बच्चा. लेकिन अगर इंडिपेंडेंट भी बनाता है तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा टीचर्स, अब ना कई बार इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाते बनाते बच्चा गलती करता है. लेट्स से मैम आप ना, पलक मैम आप बोलना आई गो स्कूल, आप ये बोल देना. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको करेक्ट कैसे करना है. ओके ओके पलक बेटा, मेक अ सेंटेंस विद द वर्ड स्कूल. I go school. Good Palak. Children, clap for Palak. Palak has made a full sentence. Children, Palak wants to say, I go to school. Palak, repeat after me. I go to school. Very good, Palak. मैम आपने देखा मैंने कैसे किया? Yes. सबसे पहले मैंने अप्रिशिएट किया. मैंने बोला बच्चे ने बहुत अच्छा फुल सेंटेंस बनाया, वेरी गुड. मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि बच्चा आपने गलत किया या अब आप मैं आपको करेक्ट करूंगी, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने बोला चिल्ड्रन पलक वांट्स टू से, मैंने सही सेंटेंस बोला फिर और मैंने उसको रिपीट किया, बच्चे से रिपीट करवाया. पलक मैम अब आप गलत बोलना, सॉरी अब आप मैं गलत बोलूंगी, ठीक है, आप टीचर बनना. ओके, तो अब आप मुझे बोलो, टेल मी द सेंटेंस विद द वर्ड बिगिन और स्कूल. सॉरी पलक मैम एक बार आप मुझे बोलिए, अब आप टीचर बनिए. आप बोलिए कनिका टेल मी द सेंटेंस विद द वर्ड स्कूल, या कोई भी करके दिखा दो जो कंफर्टेबल हो ज्यादा. Kanika, tell me the sentence what you mean by school. नो मैम, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल इज अ डिफरेंट थिंग. ये जो लिखा है ना आपको सिर्फ ये बोल देना है, टेल मी द सेंटेंस विद द वर्ड स्कूल. ये आपको बोलना है, जो लिखा है ना ब्लू में यही बोलना आपको. मैम बोलिए मुझे. Kanika, tell me the sentence with the word school. ओके मैम. आई स्कूल गो. Very good, Kanika. I go to school. Repeat after me. आप ऐसे बोलेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं पलक मैम, आप ऐसे बोलेंगे वेरी गुड कनिका. कनिका has made a full sentence. Very good. Children, Kanika wants to say I go to school. ऐसे एक बार आप बोलिए. Very good, Kanika. Students clap for Kanika. Kanika want to say, I go to school. Repeat after me. Repeat after me, Kanika. I go to school. Very good. Very nice, ma'am. Palak ma'am, बहुत अच्छा किया आपने ये ना. Very nice. Very nicely done. And last we have conclusion. In conclusion, we say, today we learned to speak the words and sentences about ourselves. We talked about our name, school, age, and class. We learned to say the words school, name, class, and use them in sentences. Now it's homework time. Today you will tell your parents about the words and sentences you learned in the class. You will tell them about the sentences you learned in the words with the words school, name, and class.
Teachers, do you think when the student goes back home and tells everything to the parents, parents को लगेगा कि बच्चा कुछ स्कूल में सीख के आ रहा है? पलक मैम, तन्वी मैम, आपको लगता है बच्चा घर पे जाके बताएगा, पेरेंट्स को भी लगेगा बच्चे ने कुछ सीखा है? Yes, ma'am. और बच्चा जब घर पे जाके सेम चीज करता है, आपको लगता है कि बच्चा भी घर पे ऐसे एक्टिंग करके दिखाएगा कि मैं Yes, ma'am. Mostly बच्चे करते हैं. यस मैम, बच्चे रिपीट करते हैं, बच्चा एक्शन करके दिखाता है घर वालों को, तो जब वो एक्शन करेगा ना तो बच्चों को वो रिआइटरेट हो रहा है, बच्चों को याद हो रहा है, रिवीजन हो रही है उसकी, उसने क्लास में क्या किया था। तो आप बोलना बच्चों आपको घर जाके करना है, ये पेरेंट्स को दिखाना है करके ये, ठीक है टीचर्स। सो ये हमारा सबसे पहला पीरियड था। टीचर्स आसान था ये? तन्वी मैम आसान था? यस मैम। ओके मैम, अब लेट्स डू अ फन स्वैप। आप 4 टीचर्स हैं, आप चारों एक एक पार्ट मुझे करके दिखाएंगे, एक वार्म अप करेगा, एक लिसन करके दिखाएगा, एक एको करेगा, ये ना एक कंक्लूजन करेगा, ठीक है टीचर्स? बाकी बच्चे उस टाइम पे स्टूडेंट्स बनेंगे, ठीक है? हम सब पार्टिसिपेट करेंगे, ओके टीचर्स? ओके, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? Warm up. I will do the warm up. ओके मैम, ओके, प्लीज स्टार्ट। Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। How are you all? मैम गुड मैम, हाउ आर यू? I'm also fine. Okay, students, do you like stories? यस मैम, मैम वेरी मच। Wow, I also like stories. चलो, तो आज हम एक स्टोरी सुनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द बुक। बुक की तरफ देखेंगे, उसमें देखो कितनी Sorry, ma'am. सारी पिक्चर्स हैं। मैम तो बोर्ड वन बाय वन स्टूडेंट्स आप मुझे बताएंगे कि व्हाट डू यू सी ऑन द बोर्ड। आपको क्या दिख रहा है उस पिक्चर में? मैम व्हाई आर यू सेइंग बोर्ड? ये आप प्ले करेंगे क्या? डू यू हैव स्मार्ट बोर्ड्स इन योर क्लास? यस मैम। ओके ओके ओके, लेकिन अभी स्कैन करने की अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप सिर्फ पिक्चर दिखा रहे हैं, तो आप बोर्ड नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आप अपने बुक्स को देखिए। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज नंबर 1, ओके ना? Okay, look at your books at page number 1. ओके मैम। मैम आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अब हमसे। Yes, Kanika, tell me what you see on the box. मैम कैट, मैम कैट आई कैन सी Good. कैट। मैम मैंगो आल्सो। Wow. तन्वी मैम आप भी जवाब दीजिए। तन्वी मैम आप सारे स्टूडेंट्स हैं मैम के। ग्रैंडमदर। Okay. What else? Flowers. Good, very good. Yes, Palak beta, tell me. A boy. Good, very good. So, आप इसमें बोलेंगे आई what सी do we see on this page? A cat, a boy, mango, grandmother, and very nice and big cake. Do you like cake? Yes। Yes, ma'am. Yes ma'am। आई लव केक। Wow, I also like cake. हम पूछे डू यू हैव अ पेट कैट? ये 2 और क्वेश्चंस है ना? Do you have a pet cat? नो मैम, मैम आई हैव पेट डॉग। You have pet dog. Wow. एंड देन मैंगो, डू यू लाइक टू ईट मैंगो? Do you like to eat mango? यस मैम, मैम फेवरेट फ्रूट। Wow, it's also my favorite fruit. Okay, do you tell me what is the color of this mango? मैम येलो। Good, very good. बहुत अच्छा किया मैम आपने। टीचर्स प्लीज क्लैप फॉर मैम ज्योति मैम। वेरी नाइसली डन ज्योति मैम, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। टीचर्स बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि सजेस्टेड क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चंस तो आपको पूछने ही है, एक्स्ट्रा आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पर ट्राई कीजिएगा कि ये आप पूछे,
ठीक है, जो लिखा हुआ है ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है. सुलक्षणा मैम, आर यू देयर? Yes, ma'am. मैम आप कहाँ देख रहे हैं? मैम बोर्ड पे स्क्रीन पे अगर छोटी अच्छा, ओके. Oh, nice, that's nice. Okay, wonderful. Okay, अब next listen कौन करके दिखाएगा? Listen is very, very important. Who would do it? What, ma'am? Listen. Ma'am, I will do it. Okay, ma'am. Okay, wonderful. Okay, students, look at your book. Now, I will try to read. I am going to read read about the school. Do you go to school? Yes, ma'am. अच्छा. मैम जो भी लिखा है ना आपको ये बोलना, जहाँ लिखा है ना से, इसका मतलब है कि आपको से नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ से पढ़ना है. Very nice, students. Very nice. Now we will read a story called First Day at School. Do you get what is a school? It is about a. No, ma'am. अभी नहीं पूछना. आपने बोला ना what is a school, ये नहीं पूछना अभी आपको. Okay, ma'am. Okay. Right. हाँ. Very nice. Now we will read a story called First Day at School. It is about a boy named Neil who is learning to talk about himself. Now let us begin reading. Wonderful. हाँ तो अब आप पढ़ेंगे, पढ़िए चैप्टर आप. Yes. Today is the first day at school. Today is the first day of school. मैम स्कूल ना हाईलाइटेड है, इसका मतलब है स्कूल में आपको एक्शन करना है. Today is the first Okay, day ma'am. of school. ऐसे. Today is the first day of school. अब आप पूछिए बच्चों से, children what is a school? मीनिंग पूछिए बच्चों से. ये हाईलाइटेड वर्ड है ना. Students, do you know what is a school? Yes, ma'am. मैम Yes. अभी Tell स्कूल में ही Kanika, हैं. what is a school? मैम अभी हम स्कूल में ही हैं. School में you. Very good. What is the name of your school? मैम name is Himalaya Public School. Okay, very good. आप दोबारा पढ़िए. The teacher says. The teacher says, today we will learn to say your name. अभी नहीं मैम, अभी नहीं. देखिए नेम अभी हाईलाइटेड नहीं है ना. जब वो हाईलाइटेड होगा ना तब आप एक्शन करना. मैं ये कह रही हूँ, आप अभी नेम की एक्शन करके दिखा रहे थे ना, अभी नहीं. जब वो हाईलाइटेड होगा ना उस टाइम पे आपको उसका एक्शन करना है. Okay, ma'am. Okay. The teacher says, today you will learn to say your name, your age, class, and school. Isn't that good? बच्चे को Yay! हम ये में ना थोड़ा एक्टिंग करना. ये मैम यहाँ पे कैमरा भी पकड़ना पड़ रहा है मैम, तो थोड़ा सा एक्शन करने में मुश्किल हो रही है. नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम. Let the children. Okay, ma'am. I will repeat the same again ma'am, from the starting. No, ma'am. Now I have kept the camera. अच्छा मैम यहीं से पढ़ लीजिए आप. The teacher asks. अच्छा, okay, ma'am. The teacher, what is your name, Kanika? मैम यहाँ पे ना आप सुनो. मैम यहाँ पे आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप रीड कर रहे हैं. Okay, ma'am. Okay, yes. The teacher asks, what is your name? आप नेम को Neil learns to say, my name is Neil. Just a second, ma'am. My name is Neil. हाँ. The teacher says, now tell me what is your age? मैम प्लीज वेट. मैम यहाँ पे जब आपने बोला ना नेम का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये अपना ये दिखाएंगे.
आप मेरा मैम स्क्रीन देखिए। शो किया मैम, पर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है। शो किया मैम, अच्छा। फोन किया। अच्छा, ओके ओके। Because I'm not wearing iPad now, so I have shown the phone. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप बोलेंगे I व्हाट will इज show now only. ओके, ग्रेट मैम। ओके, तो यहाँ पे जैसे बोला ना माय नेम इज नील, उसके बाद आपको सवाल पूछना है, Okay, ma'am. व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय। What is the ma'am again? The teacher asked, "What is your name? What is your name?" He learns to say, "My name is Neil." Neil learns to say, "My name is Neil." Oh, अब आप wonderful. सवाल पूछिए, या देखिए वन है ना, अब आप सवाल पूछेंगे, व्हाट इज द Yes. नेम ऑफ द बॉय। Okay, students, tell me what is the name of the boy? मैम नील। Oh, wonderful. Yeah, his name is Neil. The name of the boy is Neil. Repeat the sentence. The name ऑफ द of मैम यहाँ the boy रेपिटेशन is. मैम यहाँ रेपिटेशन नहीं होगा, रेपिटेशन ना एको में होता है, यहाँ रेपिटेशन नहीं होगा। ओके मैम। हाँ, फिर उसके ठीक बाद है। आप बोलिए अगेन, टीना स्माइल्स एंड सेज, oh sorry, Yes. then you say, No, ma'am. Oh, wonderful. The teacher says, "Now tell me, what is your age?" age. Tina smiles and says, "I am 4 years old." Tina smiles and says, "I am 4 years old." हम आप पूछो, हाउ ओल्ड इज टीना। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे 2 है। Tell me, students, how old is Tina? मैम 4 years old। Very good. Yes, she is 4 years old. वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर यू मैम, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। Thank you. मैम लास्ट में ना आपको समराइज करना है, लास्ट में आप बोलेंगे, मान लीजिए आपने पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया, उसके बाद आप बोलेंगे इन द Excuse स्टोरी। me, ma'am. यस मैम। I'm going to try. So I will join this meeting with Palak ma'am. ओके, नो प्रॉब्लम। सो सुलक्षणा मैम, यहाँ पे अब आप बोलेंगे इन द स्टोरी। Okay, ma'am. Now I will know. Nothing, In the nothing. story, we read about the boy named Neil. What we read about the boy's name? It was Neil. He learns to talk about his name, age, school, and class. वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। सुलक्षणा मैम, मैं इतने लोगों का डेमो लेती हूँ, पर आप लोगों ने इतनी जल्दी पिकअप किया है, इस पूरे स्कूल ने, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। Thank you, ma'am. Thank you. नेक्स्ट आते हैं एको पे। पलक मैम, आप करके दिखाएंगे एको। यस मैम। ओके, नाउ चिल्ड्रन, say what I say and do what I do. Children, say what I say, do what I do. मम्मा आपको बोलनी है ये बात, बच्चों को बोलनी है ये चीज कि चिल्ड्रन यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, एवरीथिंग आई से यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। ओके ओके, सो आई गो टू स्कूल। हम करके दिखाइए। I go to school. आप ऐसे नहीं करेंगे कि आई, क्योंकि हमें सिर्फ स्कूल पे फोकस करना है, तो आप आई में कुछ भी नहीं करेंगे, आप बस बोलेंगे आई गो टू स्कूल, बस स्कूल पे फोकस करना है। Okay, ma'am. I go to school. वेरी गुड। अब आप बोलो से रिपीट आफ्टर मी करने का, रिपीट चिल्ड्रन, रिपीट आफ्टर मी। Repeat after me. ओके मैम। I go to school. आई गो टू स्कूल। वेरी नाइस पलक मैम। अब एक बार आप मुझे पूरा करके दिखा दीजिए।
आप पूरा ही कर दीजिए मुझे, ठीक है? यस मैम। स्कूल भी और रिया वाला, ठीक है? I go to school. Say what I say, sir. Okay. Say what I say. Do what I do. Say what I say and do what I do. Say what I say and do what I do. I go to school. Repeat after me, students. I go to school. School. Wonderful. और एक बार आप ये कर दीजिए again. Say what I say, do what I do. My name is Riya वाला. Okay. Say what I say, do what I do. Okay, ma'am. My name is Riya. My name is. My name is Riya. Repeat after me. My name is Riya. Very good, ma'am. Thank you so much. Wonderfully done. Very good. Children, teachers, please clap for ma'am. Very good, Palak ma'am. Very nice. Okay. Who would do ENR? Tanvi ma'am. Tanvi ma'am, are you there? हाँ. आपको बोलना है children tell me the sentence. अब मुझे समझ आया आप लोग क्या देख रहे थे बार बार ऊपर, बिकॉज आई वॉज वेरी कंफ्यूज. आई थॉट आई डोंट नो, बोल तो मैं यहाँ रही हूँ, आप देख ऊपर रहे हैं. नाउ आई नो कि अब आप मैम फोन में बड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो. यस मैम, वो तो मुझे पता है कि आपके सामने चल रहा है. हाँ, अब आप बोलिए टेल मी द सेंटेंस. Tell me the sentence. What the word with the word school? Go school. Tell me the sentence with the words go school. No, मैम go school नहीं है. Tell me the sentence with the word school. तो आप बोलेंगे ना, अब मैं जान के गलत जवाब दूंगी, आप मुझे करेक्ट करना, ठीक है? ठीक है मैम, मैं बोलूंगी आई गो स्कूल, फिर आप अब मुझे करेक्ट करके दिखाना, ठीक है? ओके, बोलिए आप मुझे टेल मी द सेंटेंस. Tell me the sentence with the word school. We go school. Very good. Clapping करो सभी मैम कनिका के लिए. हाँ. मैं बोलती हूँ, आप रिपीट करो मेरे साथ. I go to school. आप बोलिए कि कनिका wants to say. Kanika was to say, I go to school. Repeat after me. Repeat after me. I go to school. Yes, ma'am. बोलिए wonderful, very good. Wonderful. बोलिए मैम wonderful. Wonderful, very good. Very good मैम, बहुत अच्छा किया आपने. एक बार ना आप मुझे नेम के साथ करके दिखा दीजिए, ठीक है? Kanika, I go to school. अब आप मुझे बोलिए कनिका, tell me the sentence with the word name. Repeat करना. अब आप मुझे बोलिए, जैसे आपने स्कूल के साथ बोला था ना, अब आप मुझे बोलो कि कनिका बेटा मेक अ सेंटेंस विद द वर्ड नेम. विद द वर्ड नेम. ओके, मैं आपको करके दिखाती हूँ. कौन कंफर्टेबल है ज्यादा? ज्योति मैम, आप कंफर्टेबल हैं? ज्योति मैम, आर यू देयर? यस मैम, यस मैम. ओके मैम, आपके साथ करूँ मैं एक बार? तन्वी मैम आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पलक मैम कैसे कर रही हैं? ओके ओके. पलक मैम, मैं स्टूडेंट बनती हूँ, आप टीचर बनिए, ठीक है? तो आप बोलिए टेल मी द सेंटेंस विद द वर्ड. Ganika, tell me the sentence with the word school. Okay, ma'am. Ma'am, I school go. Very good, Ganika. Ganika want to say she want to go to school. Not she. I want to. I go to school. कोई बात नहीं, आप she ही बोल लीजिए, कोई बात नहीं. Kanika wants to say
Ganika want to say, I go to school. Kanika, repeat after me. आप बोलिए कनिका, रिपीट आफ्टर मी. बच्चे ने गलत बोला है ना, तो आपने आप सही कर दिया, तो आप बच्चे से दोबारा भी तो रिपीट करवाएंगे. Okay, repeat after me. ओके मैम. I go to school. I go to school. I go to school. Very good. Now tell me the sentence with the word name. Ma'am, Kanika. Very good. Clap for Ganika. Ganika want to say, my name is Ganika. Repeat after me. Students, repeat after me. My name is Ganika. My name is Kanika. Very nice पलक मैम, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप, बहुत अच्छा करके भी दिखा रहे हो आप. Very nice मैम. तन्वी मैम, आप समझ रहे हो कैसे करना है? एक बार आपके साथ कर ले स्कूल वाला चीज. टेल मी द सेंटेंस, आप बोलेंगे एक बार मुझे. तन्वी मैम, मैम आप म्यूट पे हैं. तन्वी मैम, मैम आप म्यूट पे हैं. अच्छा, ओके. Okay, ma'am. अब आप बोलिए. Tell me the sentence with the word school. मैम, I go school. Very good. I go to the school. Kanika, say I go to the school. Cool. Okay मैम. आप तारीफ करें मेरी. वेरी गुड कनिका. Very good, Kanika. थैंक यू मैम. I go to the school. I go to the school. Repeat again. I go to the school. वेरी गुड. बोलिए वेरी गुड. बहुत अच्छा किया मैम आपने. वेरी नाइस. आपको ना इसमें 5 मिनट लगाने हैं, तो आपको इंडिविजुअली हर स्टूडेंट के साथ नहीं करवाना, ये आपको कोरल ड्रिल करवानी है, यानी कि सारे बच्चे रिपीट करेंगे. Yes, ma'am. ठीक है. ओके. लास्ट वी हैव कंक्लूजन. इन कंक्लूजन हम बस बोलेंगे बच्चों को जो लिखा है इसमें सिर्फ बोल देना है, सीधा सीधा. कौन बोल के दिखाएगा मुझे? सुलक्षणा मैम, आप बोल दीजिए. Today we learn to speak words and sentences about ourselves. We talked about our name, school, age, and class. We learned to say the words school, name, and class, and use them in the sentences. मैम जहाँ अपॉस्ट्रोफी में दे रखा है ना, वहां पे आपको एक्टिंग करनी है. तो आप बोलिए, वी लर्न टू से द वर्ड्स स्कूल, नेम, क्लास एंड यूज देम इन सेंटेंसेस. Okay. हाँ. नेक्स्ट होमवर्क. Today we learn to speak the words and sentences about ourselves. We talked about our name, school, age, and class. We learned to say the words school, name, and the class, and use them in a sentence. होमवर्क दीजिए अब. Now it's the turn for homework. Students, today you will tell your parents about the words and the sentences that you learned in the class. You will tell them about the sentences you learned with the words school, your name, and class. मैम Okay. क्लास दिखाएंगे. क्लास भी ना बच्चे के आई कार्ड में लिखी होती है.
तो Okay, उसमें भी ma'am. यही एक्शन. ओके मैम, थैंक यू Okay, सो ma'am. मच सुलक्षणा मैम, बहुत अच्छा था. टीचर्स प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ. मुझे बहुत मजा आया. वेरी नाइस, वेरी गुड. तन्वी मैम, सुलक्षणा मैम, ज्योति मैम, पलक मैम, बहुत अच्छा किया आपने. ग्रेट. ओके, अब आप कंफर्टेबल हैं. अब मैं आपको बताती हूँ पीरियड 2 कैसे करना है. तो टीचर्स पीरियड 2 आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है पीरियड 1 और पीरियड 2 में? देख के बताइए आप मुझे. यस मैम. क्या डिफरेंस दिखा टीचर्स? यस मैम. मैम क्या डिफरेंस दिखा आपको पीरियड 1 और पीरियड 2 के अंदर? Warm up, recall the chapter, discuss the picture, यस मैम, and पहले after देखिए. that listen, यस मैम, ये listen to the देखिए rhyme. हम देखिए पहले जो वार्म अप था उसमें सिर्फ डिस्कस द पिक्चर था. अब पीरियड 2 में यू आर कमिंग आफ्टर 1 वीक. तो आप Yes. बच्चे को जो पहले बच्चे ने चैप्टर पढ़ा था उसको रिकॉल करेंगे एंड देन Yes. फिर डिस्कस करेंगे पिक्चर को. यहाँ पे लिसन टू द स्टोरी था, यहाँ पे एक पोम है, लिसन टू द राइम वन. बाकी सब कुछ सेम है. मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए. तो जो लिखा है ना यहाँ पे आप एग्जैक्टली वैसा ही पढ़ देंगे. पलक मैम एक बार आप पढ़िए हेलो चिल्ड्रन से. Hello children. In the last class we heard a story called First Day at School. It was about a boy called Neil. We heard about Neil's name, age, school and class. We also learned the words school, name and class. ग्रेट, वेरी गुड मैम. ऐसे ही करना है. उसके बाद अब आप बोलेंगे ओके चिल्ड्रन लेट अस हैव सम फन. आई विल डू सम एक्शंस एंड यू विल टेल मी व्हाट आई एम डूइंग. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट डिड आई डू? जस्ट लुक एट मी. व्हाट डिड आई डू? Very good. Yes, Palak. Clap for her. Very good. Okay, so Lakshna beta, what am I doing now? Ma'am, you're on mute. So Lakshna ma'am, I'm mute pe hai. Okay. What am I doing? So Lakshna? Ma'am, you are telling about a name. Good, so Lakshna. Very good. What am I doing now? Jyoti Now, beta, what am I doing now? You are telling about the age. Very good. Yes. Very good. टीचर आपको समझ आया? यहाँ पे ना आप थोड़े एक्शंस करके दिखाओगे और बच्चा बताएगा कि क्या क्या किया आपने. ठीक है, बच्चे को मजा आएगा जब आप एक्शन करोगे. उसके बाद फिर आप बोलोगे ओके चिल्ड्रन. ज्योति बेटा, वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग? Ma'am, school. Very good. I go to school. Very good, Jyoti. So Lakshna beta, what is your name? Ma'am, my name is Sulakshna. Good, so Lakshna. And Palak beta, which class are you in? I am in LKG class. Very good. टीचर आपको समझ आया? मैंने अभी वार्म अप में जो पहले किया था ना बस उसके बारे में बात की है और कुछ नहीं किया. उसके बाद आप देखिए, अब आप जो पिक्चर है उसको डिस्कस करेंगे. ये देखिए, ये देखिए. यहाँ पे आपने पहले ये बोला, फिर आपने बोला लेट अस हैव सम फन, यानी कि टीचर ने कुछ करके दिखाया और बच्चे ने बताया. फिर आपने कीवर्ड्स पूछे, आपने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने आंसर किया जैसे मैंने करके दिखाया. ये देखिए. अब आप टेक्स्ट के बारे पे आएंगे. अब आप नए टेक्स्ट पे आएंगे, आई लाइक पे. तो अभी भी आप टेक्स्ट पढ़ना शुरू नहीं करेंगे. अब आप बच्चों को बोलोगे चिल्ड्रन नाउ लुक एट पेज नंबर 4 केयरफुली. ओके, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? पलक, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? पलक मैम, यू आर ऑन म्यूट.
A girl Very good. What is the girl doing? eating Very good. Yes. And what is the girl eating? burger. Very good. Yes. The girl is eating burger. Very good. So Lakshana, what is the girl playing with? Ma'am, she is playing with the engine. Very good. Yes, the girl is playing with an engine. And Jyoti beta, what is the color of the butterfly? Yellow, ma'am. Very good. Yes, the color of the butterfly is yellow. टीचर्स मैंने भी टेक्स्ट पढ़ा नहीं है. कभी भी कोई भी टेक्स्ट पढ़ना शुरू नहीं करना है पहले वी ऑलवेज हैव टू डिस्कस द पिक्चर. टीचर आपको लगता है ऐसा कि अगर हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो बच्चे तो सिर्फ पिक्चर ही देखते रह जाएंगे? आपको लगता है बच्चे तो इसी में फोकस करते हैं कि क्या कलर है और क्या पिक्चर बनी हुई है, राइट सुलक्षणा मैम? तो इसलिए जरूरी होता है कि आप पहले बच्चों से पिक्चर से डिस्कस करवा लो ताकि वो तसल्ली हो जाए उनको, फिर वो ध्यान देंगे कि क्या पढ़ना है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लिसन पे. अब लिसन में ना अगेन ये सब कुछ सेम है टीचर्स. आप या तो खुद पढ़ सकते हैं या फिर यू कैन स्कैन दिस बार कोड एंड प्ले द टेक्स्ट. दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. ओके, अब आप पढ़ना शुरू करेंगे. ये देखिए आपको दिख रहा होगा आई लाइक लिखा हुआ है. इट्स अ हाइलाइटेड वर्ड. तो आई लाइक आप ऐसे करेंगे आई लाइक. दिस इज लाइक I like color. color ऐसे करते हैं. देखो यहाँ पे लिखा है ना act to hold a color pen in your hand and shake it from left to right. तो इस तरह से आप शेक करेंगे. I like the color yellow. It looks like the sun. अभी आपको कोई एक्टिंग नहीं करनी. तो सन कोई हाईलाइटेड नहीं है तो आप कोई एक्टिंग नहीं करेंगे. I also like to eat. Butter jam fun. Now पलक मैम, तो आप पूछेंगे ओके पलक बेटा, what does the girl like to eat? She like to eat burger. Very good. Yes, the girl likes to eat butter, jam and bun. Very good पलक. यस, यहाँ पे आपको रिपीट नहीं करवाना बच्चे से क्योंकि ये एको नहीं चल रहा है. ठीक है, वेरी गुड. फिर उसके बाद है आई लाइक टू प्ले कैट. अगेन आप यहाँ पे देखेंगे प्ले का क्या एक्शन दे रखा है. आप वो एक्शन करेंगे और आप वो पढ़ेंगे. फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेंगे. मतलब सब कुछ सेम है. समझ आ रहा है आपको सुलक्षणा मैम कैसे कर रहे हैं हम? आसान है, कर पाएंगे आप लोग. ज्योति मैम कोई डाउट है? ज्योति मैम कोई डाउट है आपको? No, ma'am, no. It's clear. और यहाँ जहाँ पे अगेन मैं बता देती हूँ 1 2 3 4 ना आपकी बुक में लिखा होगा, बच्चे की बुक में नहीं होगा. ठीक है मैम, आपकी बुक में लिखना होगा ताकि आपको पता चले कि इसके बाद आपको सवाल पूछना. ठीक है टीचर? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एको. एको एग्जैक्टली वही है. से व्हाट आई से, डू व्हाट आई डू, जैसे अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले. पलक मैम ने बहुत अच्छा करके दिखाया था. तो एग्जैक्टली वैसा ही है. ठीक है मैम, कोई चेंज नहीं है. देन आता है हमारा ईएनआर. ईएनआर भी पलक मैम ने और तन्वी मैम ने बहुत अच्छा करके दिखाया था. एग्जैक्टली वही है, कोई चेंज नहीं है. ठीक है टीचर्स? ओके, नेक्स्ट आता है कंक्लूजन. अगेन कंक्लूजन जैसा अभी सुलक्षणा मैम ने पढ़ा था ना, एग्जैक्टली आपको बस पढ़ देना है, कुछ और नहीं करना है. ठीक है टीचर्स, आसान है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम पीरियड नंबर 3 पे. अब बताइए पीरियड नंबर 3 में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 में कोई डिफरेंस है? Rhymes to. यस मैम, ये फर्क है. पहले एक पोम थी, अब दूसरी क्लास में दूसरी पोम है. पहले एक स्टोरी पढ़ी, फिर एक पोएम पढ़ी, अब दूसरी पोएम पढ़ेंगे हम. बाकी सब कुछ सेम है मैम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ये देखिए पहले आप वार्म अप करेंगे तो पुरानी पोएम के बारे में बात करेंगे कि हमने पहले पढ़ा था पोएम, उसमें क्या हो रहा था. फिर आप वो एक्शन करके दिखाएंगे. अच्छा चिल्ड्रन व्हाट एम आई डूइंग, तो बच्चे बताएंगे दिस इज ईटिंग. बच्चे बोलेंगे ओके व्हाट इज दिस. टीचर बोलेंगे ओके व्हाट इज दिस, तो बच्चे बताएंगे. बच्चे क्या बोलेंगे पलक मैम? Like. Yes. तो यही सब एग्जैक्टली जो आपने किया था ना पीरियड 2 में, एग्जैक्टली वही करना है. फिर ये सवाल पूछेंगे आप, सेम वही चीजें हैं.
फिर आप अब नए पोएम पे आए हैं, या तो आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर इसको आप स्कैन करके प्ले कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देन ये जब आप पढ़ेंगे, आप एकदम से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, पहले आप पिक्चर डिस्कस करेंगे, है ना तन्वी मैम? पहले आप पिक्चर डिस्कस करेंगे, तो आप पूछेंगे ये सारे सवाल पूछेंगे, सेम टू सेम है जैसा अभी किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लिसन का। लिसन में फिर आप हर एक वर्ड के मीनिंग्स दे रखे हैं, आपको रुक रुक के उनकी एक्टिंग भी करनी है और बताने हैं मीनिंग की, फ्रेंड का मतलब क्या है, फ्रेंड की एक्टिंग करनी है, आपको हाथ शेक करना है, सारी चीजें दी हुई है आपकी, ठीक है। जहाँ पे माई फ्रेंड एंड मी, यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे, देखिए 1 दे रखा है ना, यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे, वेयर डज द बॉयज फ्रेंड लुक, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है वही सब, सेम टू सेम। फिर समराइज कर देंगे, फिर आते हैं हम एको पे। एको पे एग्जैक्टली वही चीज है, से व्हाट आई से, डू व्हाट आई डू, एग्जैक्टली डिट्टो सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तन्वी मैम समझ आ रहा है आपको? यस मैम। नेक्स्ट है ईएनआर, एग्जैक्टली सेम है। तन्वी मैम आपने बहुत अच्छा किया था, ईएनआर एग्जैक्टली वैसे ही करना है, ठीक है। लास्ट आता है कंक्लूजन, सेम टू सेम, बस बढ़ देना है आपको। नेक्स्ट आते हैं हम पीरियड नंबर 4 पे, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये देखिए आप। अब आप बताइए क्या डिफरेंस है तन्वी मैम इसके अंदर? सेकंड में टेल द सेंटेंस, एब्सोल्युटली, टेल्स गेट क्रिएटिव करना। एब्सोल्युटली मैम, यहाँ पे वार्म अप भी नहीं है और लिसन भी नहीं है, देखा आपने? देखिए छोटा है ना ये। वार्म अप और लिसन इसलिए नहीं है क्योंकि अब पिछले 3 पीरियड से बच्चा एक ही चीज प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है, अब तक बच्चा समझ गया है, ठीक है। अब इसलिए हम वार्म अप और लिसन नहीं कर रहे हैं, वार्म अप और लिसन नहीं कर रहे हैं, हम सीधा एको से शुरू करते हैं। तो एको के अंदर क्या होता था? से व्हाट आई से एंड डू व्हाट आई डू। तो अभी तक जो जो सेंटेंसेस पढ़े थे ना बच्चे ने, स्कूल, लाइक, नेम, फ्रेंड, सब कुछ, अब सब कुछ आप करोगे। अच्छा अब इसका क्या मतलब है, अब इसका क्या मतलब है, आप सारे पूछोगे बच्चों से, ठीक है। बच्चे रिपीट करेंगे उसे। फिर आता है ईएनआर। ईएनआर के अंदर आप बच्चों से सेंटेंसेस बनवाओगे, वैसे ही ब्रेन बूस्टर थोड़ा अलग है। अब इसमें आप बोलोगे, नाउ चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक, आस्क द लर्नर्स, सॉरी टीचर्स, यहाँ पे ना आपको एक सेकेंड, यहां से बोलना है आपको, एक्सप्लेन। टीचर्स अब ना क्या है ना, आपको लगता है कि आपको 2 पिक्चर्स दिख रहे होंगे, है ना? यहाँ पे ना बच्चा कलर करेगा। टीचर्स आपको लगता है बच्चों को कलर करने में मजा आता है? यस मैम। हमने जानबूझ के कलरिंग 4th पीरियड में दी है ताकि बच्चा अब कलर करे और उसको मजा आए, क्योंकि अगर हम ना 1st पीरियड में दे देते ना तो बच्चा कुछ ना सुनता, बस वो कलर करने में बैठ जाता है ना, वो सुनता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। लेकिन अब वो कलर कर सकता है। अब आप बोलोगे, नाउ चिल्ड्रन, आपको टीचर से नहीं बोलना है, मतलब ये तो बोलेंगे आपकी टर्न टू पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक, उसके बाद ये नहीं बोलना आस्क द लर्नर्स, ये नहीं बोलना है, ठीक है। ये बोलना है, देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ माई सेल्फ एंड व्हाट आई लाइक, चिल्ड्रन यू हैव टू कलर द करेक्ट पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ गर्ल यू विल कलर द गर्ल। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन भी पूछेंगे, अच्छा पलक बेटा, हु आर यू, गर्ल और अ बॉय? A girl. Very good. So Palak, you will color the girl. Okay, beta. Now, what do you like to eat? Apple or mango? Mango. Very good. So Palak, you will color mango. Okay. Palak, what do you like? Balloon or kite? Balloon. Very good. So Palak, you will color balloon. Okay, Palak. किस तरह से आपको बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है? ओके, आसान है टीचर्स? ज्योति मैम आसान है? ज्योति मैम एक बार आप मुझे करके दिखा दीजिए ये वाला ब्रेन बूस्टर। नाउ टर्न टू पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक। ज्योति मैम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Now, students, turn to the page number 8 and you will see some pictures there. If you are a girl, then you will color the picture of girl, and if you are a boy, then you will color the picture of boy. अब ये भी आप And also, सजेस्टेड क्वेश्चन भी पूछना ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए, बच्चे छोटे हैं ना अभी।
Okay, Tanvi, who are you? I am girl. Very good. Then you will color the picture of girl. Okay. Now tell me, which fruit do you like? Mango or an apple? I like apple. Very nice. Now you colored the picture of apple. वेरी नाइस मैम, समझ आया ना आपको? आसान है ये। Yes, ma'am. ओके, लास्ट आया हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में एग्जैक्टली जो लिखा है आपको बस ये बोल देना है, कुछ नहीं करना हो। Okay, ma'am. टीचर्स एनी डाउट किसी भी तरह का, पलक मैम, सुलक्षणा मैम, तन्वी मैम, पलक मैम, कोई भी डाउट आपको अभी तक आया है? No, ma'am. ओके, वंडरफुल। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। ये था हमारा पूरा प्रेजेंटेशन टीचर्स। थैंक यू सो मच एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप लोग एक फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए। मैं ये शेयर